Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to start with the next chapter of class 10 chemistry. Chemistry class 10th, and chapter number is also 10. First chapter is chapter 9. Chapter 9 जो है that is about chemical equilibrium, and we had discussed that chapter. Today I am going to start with the next chapter, which is chapter number 10. Acids, bases and salts. Now question arises, what is an acid? बच्चों एसिड क्या है? What is an acid? एसिड को हम इसकी खूबियों से पहचान सकते हैं. एसिड क्या है? एसिड हैज sour taste, इसका जायका तुर्श होता है. It turns blue litmus solution to red. It has corrosive action on skin. You might have seen some substances at your home which contain acids, for example, lemon, vinegar, lemon you know well, lemon जो it contains citric acid, vinegar it contains acetic acid. घरों में अक्सर आपने देखा होगा सिरका, तो सिरका जो है it contains vinegar, it forms CH3COOH, it is vinegar. और इसके अलावा आपने देखा होगा, you might have seen aspirin, cooler drinks. Other examples are cola drink, aspirin, these are the common examples of substances which contain acids. And now I am going to start with the next topic, that is the different concepts of acids. The first concept of acid is Arrhenius concept of acid. So before starting with the Arrhenius concept, I would like to give some examples of acids. For example, you have HCl, it is mineral acid. So acids are of two types, mineral acids and organic acids. Mineral acids कैसे हैं? For example, you have HCl, this is hydrochloric acid, hydrochloric एसिड, और इसे आमतौर पर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? नमक का तेजाब. इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है. इट इज वेरी कॉमन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड एसिड इज H2SO4, इट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड. तो कभी आपने सुना होगा कि एसिड का बादशाह कौन सा है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. थर्ड एसिड नाइट्रिक एसिड, HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड. अच्छा, कभी आपने सुना होगा शोरे का तेजाब. तो बच्चों ये शोरे का तेजाब ये है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, एंड इट्स फार्मूला इज HNO3, it is known as nitric acid. Fourth common acid is H3PO4. H3PO4 is phosphoric acid. It is phosphoric acid.
and the other type of acids are organic acids. ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल एसिड्स की, और दूसरे एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. सुना होगा आपने नामियाती एसिड, नामियाती तेजाब जो है, एसिड को हम तेजाब कहते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड में फर्स्ट एसिड इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है. इट इज फाउंड इन द विनेगर. एसिटिक एसिड जो है इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड. Its formula is CH3COOH. इसका फार्मूला है CH3COOH. This is acetic acid. Second one is oxalic acid. Oxalic acid का फार्मूला है COOH. जहाँ भी बॉन्ड आएगा COOH. होता क्या है कि आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को लिखते हैं COOH. Dear students, this is the wrong formula. This is the correct formula. तो बॉन्ड जो है, कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं है. दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. और तीसरा एसिड हमारे पास है बेंजोइक एसिड. It is an organic acid and benzene है, ये this is benzene. Benzene का फार्मूला है C6H6. बेंजीन है C6H5COOH. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड जो है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं COOH. And this is benzoic acid. It is an organic acid. So these are the three very common examples of carboxylic acid. इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है. और ये जो एसिड्स हैं, फर्स्ट फोर एग्जांपल्स, these are mineral acids. और you know these acids can be prepared from the salts. Salts से हम इनको prepare करते हैं. Let us see कि हम देखते हैं how we can prepare hydrochloric acid. तो इनको mineral acid क्यों कहा जाता है? Because they are produced from the mineral. Mineral से इनको prepare किया जाता है. जे कैसे? For example, if you have NaCl, this is sodium chloride. When you treat this sodium chloride with H2SO4, जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, then you get Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl plus hydrochloric acid. Now if you have NaNO3, तो इसका क्या नाम है? This is sodium nitrate. So when sodium nitrate is treated with H2SO4, then we get Na2SO4. This is sodium sulfate plus we get HNO3. This is nitric acid. Okay, 2HNO3. And if you have Na3PO4, this is salt. It is sodium phosphate. When sodium phosphate is reacted with H2SO4, then tell me which acid will be formed. Which acid is formed by the reaction of sodium phosphate with sulfuric acid? We have sodium phosphate. When sodium phosphate is reacted with H2SO4, then again we get Na2SO4. This is sodium sulfate plus H3PO4. This is phosphoric acid. तो इन एसिड्स को हम मिनरल एसिड कहते हैं. These acids are HCl, HNO3 and phosphoric acid. Now come to the organic acid. जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं? इन्हें हम मिनरल एसिड नहीं कहते हैं. These are organic because their sources are organic. इनके सोर्सेज ऑर्गेनिक हैं. They are obtained from the plants as well as from the animals.
और इसी तरह से एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक बहुत ही चेन है एसिड्स का, वो है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। फैटी एसिड जो है वो भी ऑर्गेनिक है, जैसे पामिटिक एसिड है, जैसे स्टीरिक एसिड है। तो ये जो एसिड्स है इंशाल्लाह यू विल लर्न इन सेकंड ईयर क्लास, एफएससी क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप फैटी एसिड स्टडी करेंगे। और यह अभी जो आपके कोर्स में है वो यही एसिड्स हैं ऑर्गेनिक। देखेंगे कि वो कौन सी थ्योरीज हैं जो इन एसिड्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो देयर आर तीन थ्योरीज हैं। नंबर वन इज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सेकंड आपकी थ्योरी है लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। थर्ड थ्योरी आपकी है लिवेज थ्योरी है। तो फर्स्ट थ्योरी जो है दैट इज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। Arrhenius number one, first theory is Arrhenius theory of acids and bases. Arrhenius कौन था? Arrhenius was a Swedish chemist, and in 1887 he proposed the first successful theory of acids, and according to Arrhenius theory, an acid is a substance which ionizes in water to give or to produce H positive ions. तो एसिड क्या है? आर्हेनियस के मुताबिक एसिड is that species which gives H positive ion and which ionizes in water to produce H positive ion. इसे हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, when HCl is put in water then it ionizes to give H positive ion plus Cl negative ion. If you have HNO3 nitric acid, when nitric acid is put in water it ionizes to give H positive ion plus NO3 negative ion. If you have H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है to give H positive ion plus सल्फेट नेगेटिव आयन. So it is an acid. Friends, ये जो आर्हेनियस थ्योरी है इसके दो पार्ट्स हैं. आर्हेनियस थ्योरी इट एक्सप्लेन्स एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो बेस से पहले हम देखेंगे कि बेस है क्या. व्हाट इज द बेस? बेस जो है, बेस को भी हम पहचान कर सकते हैं फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. कैसे? इसकी खूबियां क्या हैं? जिस तरह से हमने देखा कि एसिड की क्या खूबियां हैं. एसिड जो होते हैं रिलेशंस को शुरू कर देते हैं. एसिड जो है स्किन के ऊपर डाला जाए तो स्किन को जला देते हैं. और एसिड की क्या खूबी है? एसिड की खूबी ये है कि इनका जो कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए. इनका टेस्ट कौन सा होता है? एसिड का सोर होता है. कभी आपने देखा है कि आप अपनी ज़बान के ऊपर एक नींबू के 2 ड्रॉप्स आप डालें तो यू विल फाइंड क्या, आपको क्या फील होगा? क्या मीठा फील होगा? नो, यू विल फील सोर. तो जान जाएंगे कि इट इज़ एन एसिड. इसी तरह से घर में किचन में विनेगर पड़ा होता है तो जो सैलेड में यूज़ किया जाता है. तो कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आप ज़बान के ऊपर चंद ड्रॉप जो हैं विनेगर के डालें तो क्या फीलिंग होगी? यू विल फील इट सोर. तो जो एसिड है वो तुर्श होता है. और इसी तरह से ही जो बेस है, बेस है क्या? बेस जो होती है, बेस बेस क्या है? बेस जो है इट्स टेस्ट इज बिटर. इसका जो जायका होता है क्या होता है? कड़वा होता है. सोर को कहते हैं तुर्श और बिटर को क्या कहते हैं? बिटर को हम कहते हैं कड़वा. तो इसका जो जायका है वो कड़वा होता है.
पहली प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है बेस की कि बेस जो होती है इट टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करती है। रेड को ब्लू करती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस जो है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो ये खूबियां बेसिस की है। कुछ एग्जांपल्स, ऑफ बेसिस, बहुत ही मशहूर एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम आमतौर पर कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, it is potassium hydroxide. Now you have calcium hydroxide, CaOH or twice. This is calcium hydroxide. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, NH4OH. It is ammonium hydroxide. Okay. Once again, I will repeat: sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH whole twice, ammonium hydroxide NH4OH. Now come to the Arrhenius concept about bases. तो Arrhenius concept क्या है? Arrhenius क्या कहते हैं? According to Arrhenius concept, or Arrhenius theory, according to Arrhenius concept, a base is a substance सब्सटेंस मीन कोई भी शय जो है। बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस, ऐसी शय है which ionizes in water to give OH negative ions। तो बेस क्या है? बेस ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब पानी में डाला जाए तो ये आयनाइज होकर OH नेगेटिव प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, when you put NaOH in water, then it ionizes to give Na positive plus OH negative ion. So it is a base. क्यों बेस है? Because it ionizes in water to give OH negative ion. You have QH, potassium hydroxide. When potassium hydroxide is put in water, then it gives rise to a K positive plus OH negative ion. And you have calcium hydroxide. So calcium hydroxide will ionize in water to give Ca positive 2 plus 2OH negative ion. So these three are the examples of bases, and inshallah the next topic would be the Lori and Francis. Students, ये जो मेरा lecture था, it was about the students of class 10th who are appearing in Federal Board Part 2 SSC Part 2 के लिए है। और इसमें देखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। बाकी देखिए पीटी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो उनकी भी देख लीजिएगा। टॉपिक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इतने ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड आई एम प्रोफेसर हाशमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके माय डियर, बाय।